module, that is introduction of topic and its nuances. First of all, heartiest greetings to respected principals, STNCs, and teaching fraternity. I am extremely happy or feel fortunate that got an opportunity to speak few words in front of our highly educated and experienced faculties from different schools. Okay, so module 2 is the introduction of a topic and its nuances. Okay, so when the topic has been given to me from Jharkhand Sahodaya, so I was very surprised that what is the meaning of the term nuance, because I never heard this word and I have to prepare PPT. So it's a difficult task for me. So let me tell you in brief about the origin of the word nuance. The word nuance comes from the French word nubes, which means cloud. After that, it has been shifted to France, and that nubes become nuor. The English people borrowed this term in 18th century, and that nubes become nuance. Nuance means a slight difference in expression, meaning, or tone. Respected teachers, we are in the most challenging profession of the world because we have to face a lot of problems and obstacles. As a teacher, we are facing eagerly and awaiting eyes. And when we are going to start a chapter or deliver a chapter, the way of presentation should be efficient as well as effective. So if you are not going to express in a clear way, it is not going to be very much effective for the students. Your tone, your voice inflections, articulation, modulation, so many things are there. Intonation, stress, how to present the chapter in a systematic, in an organized way, so that the students are able to give the right kind of feedback. So before starting a chapter, first we have to start a rapport with the students. We have to create a credibility of the students. Next thing, that whenever we are going to introduce the chapter, we must have well-versed knowledge regarding that chapter, regarding the characters. Okay, so generally, if you are going to say how to represent it, sometimes we are using different tones, isn't it? The characters of different ages are using different tones to speak few words. Sometimes the way of expression is different. Sometimes the meaning is different. हमको याद है कि हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी थी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून. इसमें पानी का 3 अर्थ है. ठीक है, एक पानी का अर्थ क्या है कि अगर जो पानी ना रहे तो मोती जो है उसमें चमक नहीं रहती. पानी अगर इंसान के रूप में यूज किया जाए तो उसकी इज्जत को कहा जाता है. जिसके पास कोई सम्मान नहीं, वो मनुष्य इस दुनिया में नहीं रह सकता. और चूना जो है, अगर उसका पानी समाप्त हो जाए तो एक पत्थर बन के रह जाता है. तो जब हम लोग क्लासरूम में इंटर करते हैं, हम लोग कोई टॉपिक को जब इंट्रोड्यूस करने जाते हैं, वो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि हर बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लगे. ठीक है, तो हम लोग कुछ फ्रेजेस को यूज़ करेंगे, हम लोग कुछ टर्म्स को यूज़ करेंगे, हम लोग कुछ सीखेंगे द डिफरेंट वेज ऑफ स्पीच डिलीवरी, द थिंग्स विच वी आर कंसिडर while we are delivering a particular speech. Okay, जैसे कि मान लो हम लोग जो कैमराज को डिवाइड करते हैं, जैसे मोबाइल में किसका कैमरा अच्छा है, तो कैसे हम लोग बोलते हैं? पिक्चर क्वालिटी के थ्रू से, है ना. तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या बताया है कि बोथ फोन हैव ग्रेट कैमराज विथ नुआंसेस इन फोटो क्वालिटी. तो मैं एक बताना चाहता हूं, नुआंसेस का अर्थ होता है सूक्ष्मता, बारीकी, रिफाइनमेंट, नाइसिटी. ओके, एक ही चीज को आप देखें ना, एक ही टॉपिक को कई टीचर कितने तरीके से पढ़ाते हैं. कुछ टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट को वो चीज दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उन बारीकियों को समझा. अर्चरेकर साहब ने बहुत जन को क्रिकेट सिखाया, लेकिन सब कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया.
कारण क्या है? सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की उन बारीकियों को सीखा। ठीक है, जब तक जैसे मान लीजिए कुछ बड़े एक्टर्स हैं, जैसे नाना पाटेकर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, इनको बड़े एक्टर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन लोग एक्टिंग की बारीकियों को सीखते हैं। बहुत सारे लोग पुणे चले जाते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन वो अच्छे कलाकार नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन बारीकियों को नहीं सीख पाते हैं। तो जब तक हम लोग इन बारीकियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक क्या होगा कि चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन वो चैप्टर जो मैसेज देना चाहते हैं वो बच्चों के अंदर इनकलकेट नहीं होगा। तो एज ए टीचर हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग उन बारीकियों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग उन बारीकियों को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो हम लोग अपने बच्चों को उन बारीकियों को सिखा भी पाएंगे। जब बच्चे वो बारीकियां सीखेंगे तब वो जो कैरेक्टर्स है उनके मनोभाव को भी समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट इज ए नुआंस? इट इज ए सटल डिस्टिंक्शन। सटल मतलब बहुत सूक्ष्म अंतर है इसमें। इन वेरिएशन और क्वालिटी ऑफ समथिंग, द डेफिनेशन रिलेटेड टू लिटरेचर इज द स्लाइट डिफरेंसेस इन ए वर्ड्स मीनिंग। मैं बार बार बता रहा हूं, वर्ड के मीनिंग में बस थोड़ा सा अंतर है, टोन में थोड़ा सा अंतर है, उसके एक्सप्रेशन में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप इन अंतरों को नहीं समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब कोई गाना सुनते हैं तो बोलते हैं ना किशोर कुमार गा रहे हैं, दूसरे गाना को हम लोग बोलते हैं मुकेश जी गा रहे हैं, एक ही गाना है, लेकिन कैसे समझते हैं? उन आवाज की बारीकियों को। लेकिन सब कोई नहीं समझ पाता। कोई हेमंत कुमार के गाना को बोलता है मन्ना डे गा रहा है। तो जिन लोगों ने इन संगीत के क्षेत्र में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है, उन बारीकियों को समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कुछ बजा रहे हैं, ऑर्गन बजा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, उन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको अच्छी तरीके से बजा पाएंगे। तो जब हम लोग कोई चीज़ को एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव वे में करना चाहते हैं, तो बारीकियों को हम लोग कैसे समझते हैं, उसके बारे में आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें लिखा है, बट एक्टिव रीडर शुड बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नुआंस इन लिटरेचर। जो एक्टिव रीडर है वो उन नुआंसेस को स्टडी कर पाएगा लिटरेचर के थ्रू से, वो उन नुआंसेस को एक्सप्रेस। जैसे मान लीजिए एक बहुत फेमस कोटेशन है कि राइटर्स डोंट राइट एनीथिंग डिफरेंटली बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। एक ही जगह पर देखिए कि अभी जो हम लोगों का एक सिस्टम है, बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, तो उसमें एक कोचिंग सेंटर है फिजिक्स वाला का, बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं। क्या उन लोग को सेम रिजल्ट आ पाता है? वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा पाते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी उन बारीकियों को सीख रखा है। बाकी क्या होता है कि उनका कोर्स कंप्लीट होता है और वो एवरेज बेसिस पे उस मार्क्स पाते हैं। तो ऐसे हम लोग के टीचिंग प्रोफेशन में भी है कि हम लोग अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग बीएड करते हैं, सीटेट करते हैं या जेटेट करते हैं, देन वी आर एलिजिबल। लेकिन ये अच्छे टीचर होने की गारंटी नहीं है। गारंटी तब है जब हमारे पढ़ाए हुए पाठ बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें और ज़रूरत पड़ने से वो समझा सकें। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग के पढ़ाए हुए बच्चे भी टीचर्स हैं। तो आपको उन कारण से याद रखते हैं कि आपने पढ़ाने के दौरान उन बारीकियों को उन लोगों में लाया है, इस कारण से वो आज आपको याद रख पा रहे हैं। तो जब हम लोग जाएंगे क्लासरूम में तो इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग अपने टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकें। सो ए गुड ऑथर केयरफुली चूजेज वर्ड्स दैट विल इन्फ्लुएंस द रिएक्शन। जैसे बहुत पहले एक सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता थी, भिक्षुक, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वह आता पछताता, दो टूक कलेजे के करता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ पर क्या है देखिए, अगर शिक्षक उसको पढ़ा रहा है क्लासरूम में, बहुत सारे टीचर्स हिंदी पढ़ाते होंगे, तो उसके सामने एक भिखारी विजुअलाइज हो जाएगा। वो विजुअलाइज कब होगा? जब टीचर अपने टोन को नियंत्रित वे में बोल सकेंगे। यानी कि आपके सामने एक भिक्षुक चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर जो हम ऐसे पढ़ें, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर जाता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, घंटी पड़ गया, सर चले गए, कहीं पर कोई भी सूक्ष्मता उसने ऑब्जर्व नहीं करी, तो ये क्या हो जाएगा? ये इन्फ्लुएंशियल नहीं बन पाएगा। ना बच्चे उसको ठीक से समझ सके, ना टीचर उस जगह तक पहुंच सका। उसने क्या कहा जाके कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या ये चैप्टर कंप्लीट हुआ? हमने बारीकियों को टच तक नहीं किया। आप लोग देखते हैं स्कूल में
बहुत सारे ड्रामा ऑर्गेनाइज होते हैं और टीचर ही गाइड करते हैं। कुछ टीचर बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, हमारे स्कूल में भी हैं, हर स्कूल में होते हैं। तो जितना अच्छा वो एक्टिंग समझा पाते हैं, स्टूडेंट क्या करता है, उनकी बारीकियों को ऑब्जर्व करता है। वो तो इंटेलिजेंट है ही। आज के बच्चों में एक क्वेश्चन नहीं है कि इंटेलिजेंट है या नहीं है। आप लोग देखिए, हर एग्जाम का परसेंटाइल 99.9 आ रहा है, मतलब सिर्फ 0.1% बच्चे उससे आगे हैं। तो ये लोग कितने तेज हैं इनको जानने। और ऐसे ही तेज बच्चों को आपको रोज क्लासरूम में डील करना है। तो अगर जो मान लीजिए कोई एक वर्ड, कोई एक टर्म मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो बच्चे फिर आपको वही चीज रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड एक वर्ड है, हमारे स्कूल में एक ट्रेनिंग थी, कोई एक वर्ड गलत होगा, किसी ने सुना होगा, सर ने म्यूचुअल फंड कहा, वो भी म्यूचुअल फंड सर से बता रहा है, लेकिन उसको सही वर्ड पता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं क्लासरूम में, तो उसके हमारे 3 स्टेजेस बन जाते हैं। पहला क्या होता है, प्रोटेस्ट। दूसरा क्या होता है, एक्सेप्ट। और तीसरा क्या होता है, फॉलो। सो ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज, students will protest you. They are not going to accept you. Okay? But through your teaching capabilities, a situation will be created when students will evaluate you and they are going to accept you. Yes, the teacher knows something. The teacher have nice knowledge, well-versed knowledge. So we have to follow the teacher. So the third part is follow. और जब फॉलो करेंगे तो आप समझ लीजिए कि हम लोग के फॉलोअर्स पर ही हम लोग की पहचान है। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा उसके पैसे ज़्यादा। लेकिन साथ साथ में यह भी है, उनका कंपटीशन भी है। तो इस कंपटीशन को और मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग और रिफाइंड हो सकते हैं, हम लोग और नास्टी की तरह जा सकते हैं, हम लोग को और सटल डिफरेंसेस को जानना है। यानी कि आप जितनी सूक्ष्मता तक पहुंचेंगे, आप उतना सफलता की ओर पहुंचेंगे। अगर आपने इन न्यूआंसेस को ऑब्जर्व नहीं किया, तो आपके सफलता में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अ गुड इंटरेक्शन नीड्स टू गेट द ऑडियंसेस अटेंशन, स्टेटिंग द टॉपिक, मेक द टॉपिक रिलेटेबल। अगर आप क्लास में जाएं और क्लास में खूब हल्ला हो, तो क्लास कंडक्ट करना मुश्किल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द सिचुएशन वेदर द क्लास इज अटेंटिव और नॉट। ओके, इस क्लास को अटेंटिव बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे फ्रेजेस यूज करने पड़ते हैं। सेकंड थिंग कि एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आएगा, हम लोग लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो जब हम लोग ये सब क्रिएट कर लेते हैं, सो इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टॉपिक और स्टेटमेंट इन अ कन्वर्सेशन कैन बी डन स्मूथली यूजिंग वेरियस फ्रेजेस। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वेरियस फ्रेजेस हैं जो हम लोग अपने टीचिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, दे आर वेरी इफेक्टिव। कब कौन सा फ्रेज यूज करना है, जैसे पहला वाला है, बाय द वे। दिस इज ए कैजुअल वे टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक दैट मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट डिस्कशन। बाय द वे, हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी दैट जस्ट कम आउट? ओके, सपोज वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स regarding share market, mutual fund, investment, stocks. As a teacher of economics, I am facing this situation each and every day. Sometimes we are telling the students about the scam. The students are saying, sir, only the registered companies are making purchase and sell. So where is the question of scam? तब हमको उसका टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। क्या तुमने हर्षद मेहता की एक नई मूवी देखी है? नहीं सर, नहीं देखी। बोलो देखो कैसे स्कैम हो सकता है। देयर आर सो मेनी लूप होल्स जो कॉमन आदमी नहीं जानता। बोले सर कैसे नहीं जानेगा, 21st सेंचुरी में लोग नहीं जानेंगे। हम बोलेंगे वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट ओनली 9% पीपल आर नो अबाउट शेयर मार्केट, रेस्ट 81% पीपल आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट शेयर मार्केट। दिस इज अ डेटा गिवन बाय द शेयर मार्केट इटसेल्फ। सो हाउ डू दे डू ट्रांजेक्शन? वो जो शेयर ब्रोकर होता है उस पर बिलीव करके वो ट्रांजेक्शन करते हैं। अब जब बच्चे ने सुना, तब वो क्लास में क्या करेगा, अब आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि उसको लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया, बाय द वे से। नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑफ, यूज दिस व्हेन द न्यू टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाट वाज जस्ट डिस्कस्ड। स्पीकिंग ऑफ मूवीज, डिड यू हियर अबाउट द फिल्म फेस्टिवल एंड नेक्स्ट मंथ?
जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने कोई एक नया टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है। अब जब नया टॉपिक डिस्कस किया तो उससे रिलेटेड आपको जोड़ देना है। स्पीकिंग ऑफ दैट, स्पीकिंग ऑफ दिस, स्पीकिंग ऑफ दिस मैटर, तो इससे क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा, तो धीरे 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 वो सुनने लगेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं ना, हमने मान लो कुछ लिखा बोर्ड पे और वहां से एक स्टूडेंट बोलता है सर द स्पेलिंग इज रॉन्ग। कभी होता है ना, CUTTING कटिंग होता है, KUTTING भी कटिंग होता है। लेकिन बच्चे ने कहा सर आपने रॉन्ग लिख दिया। बोला मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे है कि नहीं, मुझे पता है वो CUTTING होगा, लेकिन तुम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि उसका जो अटेंशन है, हमको पहले क्लास में बच्चों को अटेंटिव बनाना है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है टीचिंग का। पढ़ाएंगे बाद में, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे ग्रामेटिकल स्किल्स देंगे, बहुत अच्छा टेक्निक बताएंगे, लेकिन अगर बच्चा अटेंटिव नहीं है, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो हम लोग इन फ्रेसेस को क्या करते हैं, जैसे कि ऑन ए डिफरेंट नोट, एक अब है दिस इज यूजफुल फॉर शिफ्टिंग टू ए कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। सो ऑन ए डिफरेंट नोट, हाउ इज योर न्यू जॉब गोइंग। सपोज कभी कभी होता है किसी टॉपिक पे द डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली फेसिंग दैट सिचुएशन। हमारे जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई में किसी कैरेक्टर का मदर का सडन डेथ हुआ है, और मैं अभी वहां पर उसी टॉपिक पे हूं और पढ़ाते पढ़ाते देखा कि वो बच्चा जो है उसके आंखों में आंसू भर गया और वो बच्चा आपके क्लास में अटेंटिव नहीं रह पा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस टॉपिक को तुरंत चेंज करना। हम लोग बातों बातों में देखते हैं ना, किसी किसी को तकलीफ होने लगती है कुछ बातों से, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को चेंज कर देते हैं। तो जब हम देखेंगे कोई एक ऐसा है, जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़ाते हैं जेंडर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इसमें है रोल ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग टेंस ओवर दैट कि व्हाई टीचर इज डिस्कसिंग दिस मैटर्स इन द क्लासरूम। सो व्हेन यू आर फीलिंग द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वर्स्ट, चेंज द टॉपिक। ओके, उसको आप कम्युनल वायलेंस पढ़ा रहे थे ना, अब उसको कम्युनल हार्मोनी पढ़ाइए, वो मैटर अपने आप खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हाट यू हैव टू टेक इन द क्लासरूम। यू आर द ओवरऑल हीरो ऑफ द क्लासरूम, रिमेंबर दैट। और एक कंट्रोल आपके रूप में है। जैसे कि मान लीजिए अभी सर ने बताया फीडबैक, तो बच्चा भी आपको फीडबैक देता है, पता है ना, उसका भी वो भी वैल्यूएशन करता है। तो बच्चा अगर आपसे रिलेट हो पाएगा, आपकी क्रिएटिविटी बन पाएगी, तो आपका फीडबैक हमेशा प्लस में आएगा। वो खुद आपके साथ सिंपैथेटिक होगा। अगर आपका तबीयत खराब है तो बोलेगा सर इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, या फिर आज सैटरडे है मंडे से स्टार्ट करेंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप बच्चों के साथ वो क्रिएटिविटी बना पाइएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन, दैट रिमाइंड्स मी these phrase words well when the new topic is a memory triggered by the current conversation. That reminds me, I wanted to ask you about our plans for the weekend. मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों के प्लान क्या है वीकेंड्स के। आप लोग इस वीक में क्या करने जा रहे हो, इस वीकेंड में आपकी प्लानिंग क्या है। यहाँ पर देखिएगा हर टॉपिक के साथ आप रियल लाइफ सिचुएशन को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये टीचिंग को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। देखिएगा वो टीचर बच्चों से सबसे ज़्यादा जुड़े हैं जो अपनी कहानियों में उनको अपने साथ समेट लेते हैं, कहानियों का पार्ट खुद बन जाते हैं। कभी कभी बच्चों को समेट लेते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जबकि उनके साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद फेस किया है, आप भी कर सकते हो। तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ ए सिचुएशन कि ऐसा हुआ था। नाउ फॉर दिस सिचुएशन यू कैन अडॉप्ट द सेम टेक्निक और द सेम मेथड। स्पीकिंग ऑफ विच, सिमिलर टू स्पीकिंग ऑफ, this phrase can also help transition to a related topic. Speaking of which, have you heard about the changes in the local government? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो टॉपिक चल रहा है अभी, जैसे कि कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हैं। आप जितनी नई जानकारियाँ देंगे बच्चे उतने ज़्यादा सुनना चाहेंगे। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट? यस सर। तो लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या है आप लोगों को पता है? बिकॉज इन क्लास 9 वी आर टीचिंग लोकल गवर्नमेंट। तो बच्चों को उन लोगों को बुला लीजिए, आप लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बता दीजिए। आप उसको लोकल गवर्नमेंट बताइए रूरल एरिया का, लोकल गवर्नमेंट बताइए अर्बन एरिया का, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा। वेयर डज ही और शी स्टैंड्स, वो अपने आप को इवेलुएट कर पाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वो अपने आप को उसमें जोड़ पाएगा। फिर वो बोलेगा सर इससे आगे बढ़ने के लिए, तो हम बोलेंगे सर देखो इसमें एमएलए जो है, एमपी जो है, एमएलसी जो है, तीनों अलग अलग हैं।
तब आप क्या करोगे, जब उनको समझाओगे तो बच्चे उनको अच्छी तरीके से सुन पाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन. What are nuances in character? So nuances in character are seem contradiction in character. Contradiction मतलब आप जानते हैं ना, विरोधाभास. जो करेक्टर है जो बहुत क्रूएल है वो अच्छा कैसे बन सकता है, लेकिन वो क्रूएल कई जगहों पर है, कई जगहों पर वो बहुत अच्छा भी है. सबके साथ क्रूएल नहीं है. तो जब हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो हम लोग इस तरह से वन वे जजमेंट या वर्डिक्ट नहीं पास करेंगे. हम लोग क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि रावण वध के बाद हम लोग अभी एक प्रोसेस में हैं कि हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं. लेकिन रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था, उसमें असीम शक्तियाँ थी. ठीक है, और रावण जो है वो कुल जाति से भी ब्राह्मण था. तो उसकी जो हम लोग शिव का जो मंत्र पढ़ते हैं वो भी रावण के द्वारा ही लिखा गया है. तो जब रावण का कैरेक्टर पढ़ाया जाए तो उसको इस तरह बताया जाए कि लोगों में जब बुराइयां आती हैं तो लोग अपने पतन को खुद बुलाते हैं. यह नहीं कहें कि रावण एक बहुत बुरा इंसान था, परिस्थितियों ने उसको बनाया इसलिए उसका नाश हुआ. तब क्या होगा कि बच्चा जान पाएगा कि अच्छे लोग भी जब बुराइयों का शिकार होते हैं तो अपने पतन को खुद बुलाते हैं, क्योंकि रावण खुद महान होते हुए भी इसी का शिकार हुआ. हम लोग जब पढ़ा रहे हैं द राइज ऑफ नेजिज्म एंड एडोल्फ हिटलर, तो हिटलर एक कारपोरेटर से चांसलर बना था जर्मनी का. ही ओन सो मेनी मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी एंड करेज. तो बच्चों को बताया जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो, अगर वो एक पार्टिकुलर सीम को लेके चलेगा, क्योंकि वो ज्यूस को, पोल्स को, रशियंस को बहुत अच्छा पसंद नहीं करता था. और हम लोगों ने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन कैंप में उसने किस तरह हत्याएं की थी. बट व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑफ हिटलर? उसको खुद सुसाइड कमिट करना पड़ा था. तो ये जो कंट्राडिक्शंस होते हैं, दीज आर द नुआंसेस. व्हाइल वी आर टेकिंग ए चैप्टर, टेकिंग ए कैरेक्टर, टेकिंग ए पार्टिकुलर पार्ट, सो प्रेजेंट इन दैट वे कि स्टूडेंट्स उसको अच्छी तरीके से समझ सकें. ओके, व्हाट डज नुआंस मीन इन लिटरेचर? लिटरेचर में मैंने बताया, लिटरेचर साहित्य एक ऐसा चीज है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके प्रेजेंटेशन पर. ठीक है, जैसे देखिएगा कि आज जो कवि विश्वास हैं ये बहुत सारी रामायण की चौपाइयाँ गाते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए हैं. तो यहाँ पर क्या है कि लिटरेचर में कुछ कुछ चीज़ों को ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसमें थोड़ा भावुक हो जाते हैं, है ना. तो लिटरेचर के पढ़ाने के दौरान हम लोग इन नुआंसेस को ऑब्जर्व अगर जो करेंगे, जैसे कैकेयी का अनुताप आपने पढ़ा होगा, मैत्रेयी गुप्त ने लिखा है. कैकेयी को क्या कहा जाता है? रामायण ये जो हम लोग पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ, उसकी मेन विलन कैकेयी है, क्योंकि उन्हीं के कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था. लेकिन इसी कैकेयी ने पश्चाताप भी किया था. इसी कैकेयी ने यह भी कहा था कि राम तुम लौट आओ, गद्दी संभालो, मैं भरत को वनवास भेज देती हूँ. तो ये जो है लिटरेचर में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी कैरेक्टर के साथ इंसाफ करते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमको ये रोल दिया गया है, क्या मैं इस रोल के साथ जस्टिफिकेशन कर पाऊंगा? तो अगर जो जस्टिफिकेशन कर पाते हैं तो आप उस नुआंसेस को समझ पा रहे हैं. ओके, एंड व्हाट आर नुआंसेस इन राइटिंग? इट रेफर्स टू शेड्स ऑफ मीनिंग क्रिएटेड बाय द सटल डिफरेंस इन वर्ड मीनिंग एंड यूसेज. देखिए, जब हम लोग नुआंसेस को स्टडी करते हैं राइटिंग में, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही वर्ड, जैसे डिग्रेडेशन, जनरलिटी इट इज यूज्ड इन ज्योग्राफी, इजंट इट? Soil erosion, land degradation and landslides. But degradation is also used in English literature. That means moral degradation. Degradation मतलब धीरे धीरे आपकी जो क्वालिटी हैबिट्स है उसका डिमिनाइज होना, आपका चारित्रिक पतन होना. तो हम लोग को एक पार्टिकुलर वर्ड को सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ नहीं देना है. हम लोग जब शब्दों को यूज़ करते हैं, स्पेशली इन राइटिंग, कोई कोई बहुत इफेक्टिव लिखता है, कोई कोई बहुत अच्छा लिखते हैं, दे आर एक्सीलेंट राइटर्स. दे आर नोइंग अबाउट द नुआंसेस ऑफ राइटिंग, हाउ टू राइट मोर एफिशिएंटली. जैसे हम लोग को मान लीजिए बैंक से पैसे लाने हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली टू द मैनेजर करके लिख देते हैं. लेकिन कोई कोई क्या करता है, वो पहले अपना अकाउंट नंबर लिखता है, किस कारण से उसको पैसे विथड्रॉ करने हैं वो लिखता है, अगर वो प्रेजेंटली वहाँ मौजूद नहीं है तो जब वो पढ़ता है तो वो पूछता है किसने लिखा है एप्लीकेशन? मेरे दादाजी ने लिखा है. दादाजी क्या करते हैं? सर रिटायर्ड मास्टर हैं.
बैंक के मैनेजर को किसने बताया? द वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि दादाजी को नुआंसेस पता है। जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो जिन्होंने इन नुआंसेस को ऑब्जर्व किया है वो क्या करेंगे? परफेक्टली बोले ना बोले, इफेक्टली जरूर बोलेंगे, उनकी बातें असर जरूर करती हैं। कोई कोई कहानी, किताबें हम लोग बचपन में पढ़े थे, आज तक याद है ना? 5 की कहानियाँ, 6 की कहानियाँ, 7 की कहानियाँ, क्यों याद हैं? क्योंकि उन नुआंसेस को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और वो आज भी एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नाउ द नुआंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी। ओके, ये प्रॉब्लम तो हर टीचर को फेस करना पड़ता है। देखो कि बच्चों को एक वर्ड है, बच्चे हमेशा बोलते हैं कि टीचर स्पीच दे रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है ना? ऐसा कभी कोई सिचुएशन फेस करना पड़ता है कि नहीं, कि सर पूरा एकदम लेक्चर दे के चले गए? क्योंकि लेक्चर मेथड इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओके, तो हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एज ए टीचर? एवरीवन, हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम लोग इन स्पीच डिलीवरी के नुएंसेस को ध्यान में रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पे हम लोग बहुत तेज बोलने लगते हैं, कहीं कहीं पे बहुत स्लो बोलते हैं, इतना स्लो कि वहाँ तक नहीं सुनाई पड़ता। अगर जो हम लोग इन बारीकियों को सीख पाएंगे तो मुझे भरोसा है कि हम लोग क्लास में अच्छे टीचर बन पाएंगे। पहला क्या है? एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है कि आपका उच्चारण एकदम साफ होना चाहिए। जैसे एक बार हमारे हिंदी के क्लास में, हम लोग 10th तक वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही पढ़े थे, दुर्गापुर में, तो हमारे हिंदी के जो सर थे वो थे तो बहुत विद्वान, लेकिन उनका मदर टंग बंगाली था। तो वो कुछ कुछ चीज़ों को ऐसा बोलते थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि एक नोट लिखो, पराधन सपने सुख नहीं। वो एक्चुअली वो बोलना चाहते थे पराधीन, क्योंकि जो पराधीन होता है वो सपने में भी सुख के बारे में नहीं सोच सकता। तो हम लोगों ने लिख दिया पराधन, जो दूसरे का धन लेता है वो कभी सुखी नहीं होता, दूसरों का धन नहीं लेना चाहिए। और इसका अंजाम क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद सबको पनिशमेंट दिया गया। तो हम लोग बोले सर हम लोग तो सही लिखे। बोला कहाँ लिखा है? हम लोग सर पराधन ही लिखे। बोला हम पराधन नहीं पराधीन बोले थे। तो उनका उच्चारण गलत होने पर क्या हुआ कि हम लोगों पे एक लगा कि कहीं कहीं पे सर जो बोल रहे हैं उसको एक बार घर में जाके देख लेना है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आप प्रोनाउंस करते हैं बच्चों के सामने, आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है बच्चे उसी तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर जब जान जाते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन समथिंग डिफरेंट है, तब उनको लगता है कि हमको और एक बार चेक करने की ज़रूरत है। तो टीचर की सबसे पहली क्वालिटी है कि इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि करेक्ट आर्टिकुलेशन। ओके, आर्टिकुलेशन क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो हम लोग डिफरेंट टोन्स यूज करते हैं, कोयल और कौवे को, उन दोनों से हम लोग रंग से तो नहीं पहचान सकते ना, लेकिन कहाँ कोयल बैठा है कहाँ कौवा बैठा है कैसे पहचानेंगे? उसकी आवाज़ से। तो ये जो टोन्स होते हैं ना, हमें भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग टोन्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में बहुत सारे आर्टिकुलरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? हमारा अपर टीथ है, हमारा टंग है, हमारा थोरैक्स है, हमारा पैलेट है, फेरेनिक्स है। तो ये जो आर्टिकुलेशन मतलब होता है, इसका जो हिंदी डिक्शनरी में खोजिएगा तो इसका अर्थ होता है जोड़बंदी। जैसे मैनेजमेंट कैसे काम करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सबका एक तो कॉम्बिनेशन है ना, तभी मैनेजमेंट काम करता है। तो वैसे हमारा जो अपर टीथ है, हमारा जो टंग है, हमारा जो थ्रक्स है, एक साथ साउंड बनाता है, लेकिन उसको स्टूडेंट के सामने किस तरह से प्रोनाउंस करना है कि सही आवाज सही जगह तक पहुंचे, सही रूप में पहुंचे। तो जब आपका प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपका आर्टिकुलेशन भी सही होगा तो आपकी स्पीच डिलीवरी बहुत इन्फ्लुएंस होगी। नेक्स्ट वन, मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच। मैंने भी बताया कि कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोलने में भी, जैसे हमको याद है, आई वॉज इन क्लास 6 and the teacher was teaching about Greek culture from the pictures of the Greece that we get from Iliad and Odyssey. It can be said that, क्योंकि घंटी पढ़ने वाली थी और सर को चैप्टर कंप्लीट करना था। सर पूरा पेज पढ़ गए, समझ में कुछ नहीं आया। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह बोले कि हमने बहुत सोचा इस परिणाम पे पहुंचे, तो आपको वेट करना पड़ेगा कहाँ कब खत्म होगा, ताकि क्लैप मारे जल्दी से। तो आपका जो रेट ऑफ स्पीच है ये मॉडरेट होना चाहिए,
ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। बच्चों के साथ थोड़ा धीरे धीरे बोलें, बड़ों के साथ आप थोड़ा अपने स्पीड बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इम्पैक्टफुल मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक तरह का रेगुलेशन की तरह होता है। आप देखिए पंखे में रेगुलेटर होता है, आपकी स्पीड को बढ़ाता है घटाता है। आवश्यकता के अनुसार हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जहाँ पर हमको लगता है यहाँ पर थोड़ा और समय देना चाहिए, हम लोग उसको और तेज बोल सकते हैं। जहाँ पर लगता है समय कम लगना चाहिए, हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जब हम लोग अपनी आवाज़ को जब आप पर आवाज़ का कंट्रोल हो जाएगा, जब आप आवाज़ को नियंत्रित कर लोगे, जब आप कोई चीज़ को पढ़ाना चाहते हो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, हमको पढ़ाना है रिगार्डिंग ब्लड, सो ब्लड इज रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन द सेल्स। धीरे धीरे वन स्टूडेंट विल से सर व्हाट इज सेल, ओके लेट मी टेल यू, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या देखिए धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर क्या है कि हमको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरा एक कैरेक्टर जो है वो खुद बहुत स्पीड में बोलता है। तो अगर आपका आवाज़ के ऊपर मॉड्यूलेशन है, अगर कंट्रोल है, इसको हमेशा इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कुछ जो टीचर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल ऑरेटर होते हैं, उनका मैसेज सब तक पहुंचता है, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ए शांत हो गया हो। और कुछ स्टिक लेके पीछे पीछे घूमते ही रहते हैं, पीटते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे शांत नहीं होते हैं। तो जब आपका आवाज़ पे नियंत्रण हो जाएगा तो काफ़ी हद तक स्पीच डिलीवरी आपके कंट्रोल में हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एग्जैक्ट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस आप लोग जानते हैं कहाँ पे हमको रुकना है, किस जगह पर शब्दों पर हमको प्रभाव डालना है इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। और इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राइज एंड फॉल इन योर वॉइस, कहाँ हमको धीरे बोलना है, कहाँ हमको जल्दी बोलना है, कहाँ हमको ऊंचा करके बोलना है, कहाँ हमको नीचे करके बोलना है। जैसे आई पास द एग्जाम, आई पास द एग्जाम, आई पास द एग्जाम, सेम वर्ड से देखिए, लेकिन कहीं पर राइजिंग इंटोनेशन है, कहीं पर फॉलिंग इंटोनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे मतलब क्या है कि जैसे सर ने बताया, ये लोगों ने जज कर लिया, लेकिन टॉपर बोल रहा है आई एम इन डाउटिंग सिचुएशन कि मैं क्वालिफाइंग कर पाऊंगा कि नहीं, तुम पास नहीं कर पाओगे। देखिए है ना, तुम पास नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है कि अगर जो क्वेश्चनिंग मोड में भी है, देखिए आपकी बातें जो है ना, इसका उतार चढ़ाव ही सब जज करता है। क्या मैंने देखा, क्या मैंने देखा, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं। एक में क्या पूछ रहा है, क्या मैंने देखा कि क्या आया था रिजल्ट, नहीं देखा। एक में पूछ रहा है कि क्या मैंने देखा, आपने मुझे दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इंटोनेशंस हैं ये क्या करेंगे, उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बिना भाव के कुछ बोल रहे हैं, कोई बच्चा, उसके साथ आपको एम्पैथेटिक होना है। सिंपैथेटिक तो सभी होते हैं, लेकिन हम किस तरह एम्पैथेटिक हो रहे हैं, मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन चेहरे से दुख दिख नहीं रहा है। हमने एक मूवी देखी थी, थोड़ा डिस्कशन उधर लेके जाते हैं। मूवी का नाम था प्यारी बहना, हीरो थे मिठुन चक्रवर्ती साहब, बंगाल के सुपरस्टार थे, आज भी सुपरस्टार है। अब तो उनको बहुत अवार्ड भी मिल गया, शायद कुछ दिनों पहले उनको, क्या सर, हाँ दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। तो उस मूवी में क्या आप लोग देखिएगा, मूवी बहुत अच्छी है, कि उसमें शक्ति कपूर जो है वो उनके हाथ को एक ट्रक से कुचल देता है और उनका एक हाथ जो है एम्प्यूट करना पड़ता है। तो शक्ति कपूर उनके साथ सिंपैथेटिक कैसे होता है कि सुन के बहुत दुख हुआ कि तुम लुल्ले हो गए, ठीक है। तो यहां पर लग रही है कोई सिंपैथी। जब हम लोग मान लीजिए किसी भी कैरेक्टर के प्रति सिंपैथेटिक हैं तो हमारे वो राइज एंड फॉल से पता चल जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई हैव पास दिस एग्जामिनेशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाओ, ब्रावो, वेल डन। आपका आवाज कैसे है? दूसरे में क्या बोलते हैं, फाइन, इट्स फाइन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मन ही नहीं कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेट करने का, लेकिन वो कर रहा है, करना पड़ रहा है उसको। तो टीचर को इसका ध्यान रखना है कि कहाँ स्ट्रेस है और कहाँ इंटोनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ आपके वॉइस में फॉल होगा, कहाँ आपके वॉइस में राइस होगा। अगर गलत जगह फॉल हो गया और गलत जगह राइस हो गया तो आपका पूरा चैप्टर पढ़ाना बेकार हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम से बड़ा टीचर इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस
हरिश्चंद्र को लोग दानी कहते हैं। वो हरिश्चंद्र बनारस में एक चंडाल की गुलामी भी किए हैं कई दिनों तक। तो समय सबको वह दिन दिखा देता है। कबीर ने लिखा है ना, कबीरा कबहु न कीजिए काल गहे कर केस, और ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या प्रदेश। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको आज क्लास 12 में मनी एंड बैंकिंग पढ़ाना है, और आज के बाद मंडे को पीटीएम हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले लोगे। फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, देयर डिफरेंसेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आपने देखा इसमें मेरा लगेगा 10 मिनट, इसमें 10 मिनट, इसमें 10 मिनट, लेकिन लास्ट वाला पोर्शन में मेरा 15 मिनट लगेगा। 35 मिनट में एग्जैक्ट घंटी पड़ी और अगर टाइम खत्म हो गया। तो आपको जब तक टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं होगा तब तक लेकिन हम लोग इन नुएंसेस को कैच नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत कुछ बोलना था लेकिन आप बोल नहीं सके, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत ध्यान रखा, आपने बॉडीज पे बहुत ध्यान रखा, लेकिन कंक्लूजन पे ध्यान नहीं रखा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा कि जब हम लोग जाएंगे तो हमको जब तक बोलना है हम लोग बस उसी पार्ट पे उसको कंप्लीट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। जैसे देखिए, जो प्लेयर का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है वही गेंद को सही स्ट्रोक ले सकता है। आप बैडमिंटन खेलिए, आपको टाइम मैनेजमेंट ज्ञान हो जाएगा। आप बॉक्सिंग खेलिए, आपको ज्ञान हो जाएगा। मैम तो है ही कैरेटे एक्सपर्ट, ये पूरा टाइम का ही गेम है। आप बहुत सेव करते चले जा रहे हो, जहां मौका मिले उसको नॉकआउट कर दो। सब कुछ टाइम मैनेजमेंट पे है। तो अच्छे टीचर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी आती है, ही और शी इज ए वेरी गुड टाइम मैनेजर। ओके, नेक्स्ट वन, फ्लॉलेस बॉडी लैंग्वेज। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, स्टूडेंट्स आर इवैल्यूएटिंग यू। कहीं टीचर डर तो नहीं रहा? ए टीचर डर गया, ए टीचर डरा हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट डे। आप जब नई जगहों पर जाते हो, नई जगहों पर, ठीक है, प्रेजेंट स्कूल जो है मेरा, दिस इज माय 7th स्कूल। ओके, पहले रानीगंज में मैं था, फिर धनबाद में था, यूपी में भी था, दिल्ली में भी था, फिर लौट के आया धनबाद में, फिर वहाँ से दुमका आया। तो पहला दिन क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो गया, क्लास में भेजा गया, क्लास 10। पहले ही दिन बोलेगा अरे नया टीचर आ रहा है। और जब नया टीचर आ रहा है मतलब उससे ज़्यादा आप डरे हुए हो, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, पहले पढ़ाना तो जरूरी है नहीं, पहले पूछा, इंट्रोडक्शन लिया, कहाँ तक पढ़ाई हुई है। वो बच्चा लेकिन इवैल्यूएट कर रहा है आपको, मार्क्स देगा 10 में, 10 में 2, 10 में 3, 10 में 4, इस तरीके से। लेकिन देखा अरे यार टीचर तो पूरा एकदम जबरदस्त है, इसका तो एक स्माइलिंग नोट हमेशा रहता है, कुछ बोलने पर गुस्सा नहीं होता, पहले की टीचर की तरफ पीटता नहीं है। धीरे 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 क्या होगा कि आपने एक अच्छा रेपो बना लिया। तो वैसे जब आप कुछ डिलीवर कर रहे हो तो स्ट्रेस आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। कितनी भी तकलीफें आप फेस करके आए हो, वट एवर इज योर सैलरी, इट डजेंट मैटर। जब आप कुछ टीच कर रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत फ्लॉलेस होना चाहिए। इतना फ्लॉलेस कि बच्चे बिना डर के क्वेश्चन पूछ सके, बच्चे बिना हेजिटेशन के पूछ सके। आप वेलकम नोट दीजिए, आप बच्चों को बोलिए। कभी कभी कोई बच्चों को हम लोग बाय नेम भी जानते हैं, उसको भी बुला लेते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, तुम बताओ तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ। फिर कभी कभी हम लोग बोलते हैं तुम लोग हमेशा पास ही क्यों बैठ रहे हो, उधर क्यों बैठ रहे हो। तो इसके टॉपिक सब में क्या होता है कि बच्चे आपको नहीं उलझा पाते, वो खुद उलझ जाते हैं। रोटेशन में आ गए, कौन कौन रोल नंबर बैठेगा, तो रोल नंबर बैठो 1, 8, 15, 22, 29, 2, 9, 16, 23। देखिए कैलेंडर के डेट्स हैं ये सब, 3, 10, 17, 24, 31, है ना। तो बच्चा सोचा ये कैसा है, हम लोग का रोटेशन कैसे हो रहा है सर, कैसा रोटेशन कर रहे हैं। आप एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि मैं स्ट्रेस्ड नहीं हूं। आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप कहीं भी डरे हुए नहीं हो। कुछ क्वेश्चन पूछा, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, पहले ही है वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ देम आर नोइंग द आंसर। आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। और अगर जो आंसर नहीं मिला तो आप जो मिला वो उससे कंक्लूड कर दीजिए। या फिर एक शॉर्टकट मेथड है, दिस इज योर होमवर्क। सर ये तो बहुत टफ था, दैट्स व्हाई इट इज योर होमवर्क। तुम करके लाओ, कल मैं बताऊंगा इसका जवाब, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। बच्चा भी होमवर्क करे और आप लोग भी होमवर्क कीजिए आराम से, उसके बाद फिर पूरा टॉपिक को डिस्कस कीजिए। आप डरे नहीं ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ा रोल है टीचर का। अच्छे टीचर वही हैं जो हर प्रश्नों को ना जानते हुए भी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। शब्दों का जाल आपने देखा है, शब्दों का जाल टीचर से अच्छा किसी के पास नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब उस सिचुएशन में पड़ जाएं
तो अपने बॉडी लैंग्वेज को कभी इस तरह से नहीं शो करें कि हम कहीं पे डरे हुए घबराए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर स्टेज कोऑर्डिनेशन। स्टेज कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पर पीपीटी में दूसरा कुछ दिखा रहा है, हम बता रहे हैं कुछ दूसरा, हम टॉपिक से दूसरा कुछ बता रहे हैं। तो जब हम लोग स्टेज पे रहेंगे तो हम लोग ऐसे टहलते रहें, बताते रहें, समझाते रहें, स्टेज के साथ कोऑर्डिनेशन करते रहें। अब हमारा स्टेज क्या है? हमारा स्टेज क्लासरूम है। टीचर्स के लिए स्टेज तो क्लासरूम ही है ना। तो टीचर क्या करेगा? टीचर इधर से जब भी जाकर एक बार देख लेगा, एक बार वर्टिकली देख लिया, एक बार हॉरिजेंटली देख लिया, सबको देख लिया और ऑब्जर्व कर लिया। तो उसी तरीके से जब हम लोग स्पीच देते हैं तो हम लोग इसका जरूर ध्यान रखें कि मेरा कोऑर्डिनेशन सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन सही है तो मैनेजमेंट अपने आप सही होगा। जो हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसका एसेंस ही कोऑर्डिनेशन है। जो अच्छा टीचर है दैट मीन्स ही इज ए वेरी गुड कोऑर्डिनेटर, ही इज ए वेरी गुड मैनेजर, ही इज ए वेरी गुड लीडर, ही इज पोजेसिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, क्योंकि उस क्लासरूम का लीडर वही है। तो अगर जो हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे सारी चीज़ों को, स्टेज के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, किताबों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, मैप के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, किन दो देशों में लड़ाई हो रही है पता करो, वो ढूंढ के अपना बताएगा, सर इससे लड़ाई हो रही है, ये कहाँ पर, इसका नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। तो इसमें क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट करने का टाइम मिल रहा है। आपके क्लासरूम में मैप है, आपके पास टीचिंग किट्स हैं, सबका सारा लीजिए और सबके साथ कोऑर्डिनेशन रखिए। ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर जब हम लोग खाने बैठेंगे तो खाली चावल थोड़ी ही खाएंगे, कितना भी महंगा क्यों ना हो, खाली दाल भी नहीं पिएंगे, खाली सब्जियां भी नहीं खाएंगे, हमको सब कुछ चाहिए, साथ में सलाद भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, दही भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट ही होता है कोऑर्डिनेशन करना। इससे क्या होगा कि आपके शरीर को प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, रफेज सब राइट प्रोपोर्शन में मिल जाएंगे, आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो हर जगह पर जब हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हम लोग स्टेज कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज राइट स्पीच डिलीवरी मेथड। ये हम लोग इसके बाद वाले उसमें बताएंगे स्लाइड में, ठीक है। और इसके भी 4 तरीके हैं जो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। दीज आर द 3 pillars ऑफ स्पीच डिलीवरी। यू शुड बी वेरी फ्लुएंट, ओके। हो सकता है किसी टॉपिक पे मेरा उतना नॉलेज ना हो, किसी एक समय जगह पर मेरा उतना ज्ञान ना हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आएंगे। जहां आपकी फ्लुएंसी घटी वो दूसरा ग्रुप जो है वो आक्रामक हो जाएगा। टीचिंग प्रोफेशन में एक चीज हम लोग बोले कि डोमिनेट और बी रेडी फॉर डोमिनेशन। डोमिनेट मतलब तलवार लेके नहीं जाना है, आप अपने लैंग्वेज से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने नॉलेज से, अपने एक्ट से आप डोमिनेट हो सकते हैं। तो ये जो हम लोग फ्लुएंसी को और क्लैरिटी बहुत जरूरी है, एकदम साफ साफ समझ में आना चाहिए। ये देखिएगा बहुत सारी चीज़ों पर लोगों ने कुछ बोला है, कहा है, बट इट इज़ नॉट क्लियर टू अस। वो आखिर बोलना क्या चाहता है, वो आखिर करना क्या चाहता है, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं इसको। तो अगर जो आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डाउट क्लास, इफ सो मेनी हैंड्स आर रेजिंग सो इट्स ए क्वेश्चन मार्क फॉर द टीचर, बिलीव मी। एक टॉपिक आपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाया और आपको आपके प्रिंसिपल साहब आके बोल रहे हैं डू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक, ऑल द हैंड्स आर रेज्ड। मतलब वो क्लियर नहीं कर पाए। हो सकते हो बहुत रिसोर्सफुल हो, वो बहुत नॉलेजेबल टीचर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है, किसी किसी टॉपिक पे उनको समझ में नहीं आ रही है। जैसे होता है ना कि स्पेशली आई एम बिलोंगिंग टू सोशल साइंस डिपार्टमेंट, तो हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाना पड़ता है। टीचर कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, अंडरस्टूड। हम लोगों ने एमए में जो पढ़ा है, स्पेशलाइजेशन किया, उस पर पढ़ सकते हैं। तो कुछ टॉपिक पे मेरे डाउट होते हैं, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, हमको स्पेशल टाइम लेकर उसको क्लियर कर लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा वही क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ दे और उसका 1 नंबर कम आ जाए तो पूरी जिंदगी बोलेगा कि शुक्ला सर के कारण 99 आया, नहीं तो 100 आता, कि क्लास में सर ये बता दिए थे, हम सर से पूछे थे। मैं बोला नहीं, तुमको कभी नहीं बताया था। बोला सर कॉपी रखी हुई है, आपका साइन है और सिग्नेचर भी किया हुआ है। तो जहाँ पर डाउट हो रहा है आपको, जहाँ पर तकलीफ हो रही है, इसमें कोई हेजिटेट करने की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है। हम लोग एवरीडे कुछ नया सीखते हैं, टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, रोज नई की चीज़ों को सीखते हैं। तो जब तक क्लैरिटी ना आ जाए तब तक हम लोग कोशिश करें, और जब क्लैरिटी आ जाए तो फिर अब कोई डरने की बात नहीं है, उसमें आप रोज ऐड करते चले जाइए। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लुएंसी। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस।
यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, आप जितना जानोगे आप उतना कॉन्फिडेंट रहोगे। आप देख लो, किसी टॉपिक पे आप रोज पढ़ाते हो, रोज एवरीडे, लास्ट 10-12 सालों से, आप कॉन्फिडेंट हो ना? कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा। लेकिन नया टॉपिक जो है उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। जैसे देखिएगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं अभी, उन लोगों को कंप्यूटर का भी नॉलेज जोड़ दिया गया है, टेली 9.2 एंड समथिंग एक्स्ट्रास। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इज हैविंग वेल वर्स्ड नॉलेज इन अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मर्केंटाइल लॉज एंड ऑल द थिंग्स। बट रिगार्डिंग कंप्यूटर उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसने वो सीखा नहीं है, अब उसको ऐड करना पड़ रहा है। फिर एक था कि सीए के लिए हम लोग को सीपीटी देना पड़ता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें अब इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है। तो इंस्टीट्यूट से किसी ने पूछा कि इंग्लिश की क्या जरूरत है? जरूरत है कि जो बिहार के टॉपर्स हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं अकाउंटेंसी में, लेकिन जब बात आती है कहीं पर प्रोग्राम को कन्वे करने की तो दिक्कत आ रही है। तो कम से कम स्पोकन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम वो लोग दूर कर ले। अगर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा तो एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, क्योंकि ऑडिटर है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑडिटर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी आर ऑडिटर्स, और एक ऑडिटर कम से कम 8-10 बैंकों का ऑडिट करता है। सारे मैनेजर के सामने हम नहीं बोल पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। तो हम लोगों ने क्या करा, उसमें कम से कम काम चलाओ अंग्रेजी सिखा दिया। जैसे क्रिकेटर्स को सिखा देते हैं ना काम चलाओ अंग्रेजी, एक्टर्स को भी सिखा देते हैं। वो सब ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े हैं, उनका एक स्पेशल क्लास होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और वो सीख जाते हैं। जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। देखिए आपके घर में सेल्समैन जो आता है मिक्सी लेके, वही 10 लाइन बोलता है हर जगह, 12वां लाइन 13वां लाइन नहीं बोलता, क्योंकि जिसको खरीदना होगा इस 10 लाइन में खरीद लेगा, और जो नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। उसको उतना ही सिखाएगा, लेकिन वो 10 लाइन बहुत अच्छा बोलेगा, एक अच्छे इंग्लिश टीचर से भी अच्छा, क्योंकि वो 10 लाइन वो रोज बोल रहा है। मंदिर के सामने जितने भिखारी बैठे देखिए सब मंत्र याद है उनको, रोज सुनते हैं सुबह शाम 8 घंटे। इसका मतलब वो बहुत बड़ा विद्वान पंडित नहीं है, एक ही प्रोसेस में, रिपीटेटिव प्रोसेस में है, और धीरे धीरे वो सीख गया है। तो जैसे ही हम लोग कोई चीज को जानेंगे ना, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, और ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट जो है इट इज इक्विवेलेंट टू योर स्मार्टनेस। जो बोलता है ना बहुत स्मार्ट है, एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट है। जिस पार्ट को लेके वो स्मार्ट है उस पार्ट को लेके कॉन्फिडेंट है, जिस पार्ट को लेके कॉन्फिडेंट है उस पार्ट को लेके वो स्मार्ट है। अगर जिस पार्ट को लेके उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, देखिए उसका स्मार्टनेस खत्म हो जाएगा। हम अगर नहीं जानते हैं किसी के बारे, जैसे मान लीजिए हमको एक 5 स्टार होटल में खाने का तरीका पता नहीं है, आप जितने भी अच्छे कपड़े पहने रहो, आप वहाँ स्मार्ट नहीं हो, लेकिन एक वेटर जो 12 पास करके होटल मैनेजमेंट में गया है, वो देखिए आपसे अच्छा सर्व कर देगा। लेकिन धीरे 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 आप उसमें भी स्मार्ट बन जाइएगा। तो जब आप स्मार्ट बन गए तब आप कॉन्फिडेंट बन गए, अब सेकंड टाइम 5 स्टार में जाने से नहीं घबराएंगे। तो दिस कॉन्फिडेंस, दिस क्लैरिटी एंड दिस फ्लुएंसी आर द 3 पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। These are the 4 methods of speech delivery। ठीक है, अभी तक हम लोग नुआंसेस पढ़ रहे थे स्पीच डिलीवरी के, अब थोड़ा सा मेथड्स हम लोग पढ़ ले। मेथड्स में क्या है कि जनरली 4 तरीके जो हैं हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला तरीका जो होता है वो बहुत कॉमन तरीका है, जैसे रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ बोलना है, सर आपको कुछ बोलना है, हम लोग बोलते हैं लिख दो, बोल देंगे, लेकिन बोल ही देंगे, मेरा कोई आई कांटेक्ट नहीं होगा किसी के साथ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजन वृंद, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि आपकी तरफ देख ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये मोनोटोनस हो गया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, देखिएगा कि वो माथा झुका के पढ़ रहा है, कोई नहीं है हॉल में, अकेले ही वो पढ़ रहे हैं। लास्ट में जब वो धन्यवाद बोलने के लिए उठेंगे, नोबडी इज देयर। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो बच्चे पहली बार स्पीच में पार्टिसिपेट करते हैं तो रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू से काम चला देते हैं। कभी कभी होता है कि जो टीचिंग लाइन में एकदम नया आया है, जोश में एकदम आया है, शाहरुख खान की फिल्मों को देखकर कि हम भी ऐसे टीचर बनेंगे। वो क्या है ना, क्या मूवी थी जिसमें वो टीचर बना था, क्या चीज सुनाई नहीं पड़ रहा, इट इज नॉट ऑडिबल। अच्छा जो भी हो, वो हीरो बना था, मोहब्बतें, मोहब्बतें, और एक में बना था सर,
हाँ, तो अभी जो अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, ये लोग टीचिंग लाइन में आ जाते हैं, तो उसको देख के बहुत सारे बच्चे बीएड कर लेते हैं कि हमको भी वैसे ही कॉलेज मिलेगा, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे अप्रिशिएशन, लेकिन बाद में वो बड़ा पछताते हैं। यार कहाँ जैसे देखा, हमको तो अपने मनपसंद ड्रेस को भी नहीं पहनने को मिल रहा है, ड्रेस कोड आ गया यार। हम जो चाहते थे, हमको तो बच्चों को क्लास मिल गया है, कहाँ इन लोगों में हीरोइज्म शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो टीचर पहली बार क्लास में जाता है, तो वो देखता है कि लगभग लगभग उसकी उम्र के बच्चे पढ़े हैं, तब वो क्या करता है, वो पढ़ के काम चलाता है। तो रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट एक तरीका है, आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि मैंने जो पहला मेथड अडॉप्ट किया, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हुआ, तो मैंने क्या करा, नहीं मैं इस बार अब नहीं पढ़ूंगा उस तरह से, क्योंकि लोग बोलते हैं रट के आके बोल दिया, जो भी बोल रहा है रट के बोल रहा है। टीचर के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है अगर कोई बोले रट के बोलता है, ये तो रट लिया है पूरा, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन रट लिया है, उसके बाहर पूछो नहीं बता पाएगा। तो हमको ये रटने वाली प्रवृत्ति को दूर, रोटे मेमोरी इज टोटली एब्लिस्ट इन सीबीएसई, रोटे मेमोरी को प्रोत्साहित नहीं लेना है, उसके साथ जितनी चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड को लेंगे, दैट इज मेमोराइजेशन। हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी टॉपिक आप कितना भी याद कर लीजिए, जब आप यहाँ आइएगा तो आधा टॉपिक आप भूल गए, ठीक है। आपने कहा मैं जाऊंगा और जाते ही स्टार्ट कर दूंगा ऐसे ऐसे करके, और ये माइक नहीं चल रहा है, जब तक माइक ठीक हुआ अपना टॉपिक भूल गए आप, फिर आप ताकिए हमको और हम आपको ताकते हैं। तो मेमोराइजेशन में क्या है कि इसमें एक चीजें हैं कि अगर आपको याद रह गया, अगर आप पूरा उसको याद रख सकते हैं और आई कांटेक्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करोगे, उस टॉपिक को वन बाय वन आपसे एक्सप्लेन कर दोगे, और इसमें वो जो नुआंसेस मैंने बताया था, आप उसमें अपने चीज़ों को ऐड कर दीजिए, अपने तरीकों को ऐड कर दीजिए, अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर दीजिए, एक्सप्रेशंस को ऐड कर दीजिए, टोन को ऐड कर दीजिए, वॉइस इन्फ्लेक्शन जो है उसको ऐड कर दीजिए, मॉड्यूलेशन ले आइए, इंटोनेशन ले आइए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाइए। ये मेमोराइजेशन मेथड में आता है, यहाँ पर आप हीरो हैं, आप जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड भी बहुत कारगर नहीं होता, मैंने जैसे बताया कि आप अगर इसमें थोड़ा भूल जाओगे तो पूरा भूल जाओगे, फिर आपको अगर वो याद नहीं आएगा तो क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, आपने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया, लेकिन लास्ट आप फिनिशिंग नहीं दे सके। इंडियन क्रिकेट टीम की तरह खेली बहुत अच्छा लेकिन हार गई, क्योंकि लास्ट 10 ओवर्स वो अच्छा नहीं खेल सकी। तो जो टीम लास्ट 10 ओवर्स अच्छा खेलती है वही टीम जीतती है, पूरा गेम तय करता है लास्ट का 10 ओवर्स। आप क्लास में देखो, आप क्लास में लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं बिफोर रिंगिंग द बेल, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर जो आपको किसी बच्चे ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसका जवाब आपको नहीं पता था, और आप दुआ कर रहे थे कि घंटी पड़े, और घंटी पड़ गई, तो उसके बाद वाले क्लास में क्या होगा, आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस्ड फील करोगे कि ऐसा फिर क्वेश्चन ना कर दे। लेकिन किसी किसी का दिन अगर खराब रहेगा तो 6 पीरियड वैसा ही गुजरता है, तब वो क्या करता है, तब वो स्टाफ रूम में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता है, घर में जाकर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता है। तो मेमोराइजेशन ये भी एक स्पीच डिलीवरी का मेथड है, लेकिन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। एक और मेथड है जिसको हम लोग एक्सटेम्पोर मेथड कहते हैं। एक्सटेम्पोर मेथड जो है ये सबसे पॉपुलर मेथड है। यस मैम, यहाँ ऑन द स्पॉट। एक्सटेम्पोर में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ पॉइंट्स लेते हैं, दिस पॉइंट्स वी नीड टू एलाबोरेट, 1 2 3 4 5 6 जितने सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। एक में था राइटिंग द नोट्स, यहां पर है एक्सप्लेनिंग द नोट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घूमते फिरते आकर एक बार पॉइंट्स देख लिए। स्पेशली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए दिस मेथड इज स्पेशल। दोज हु आर पावर पॉइंट प्रेजेंटेड, उन लोग इस मेथड को यूज करते हैं। अभी जितने यूट्यूब वीडियोस बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ओनली ड्यू टू दिस मेथड, वो क्या करते हैं, सिर्फ उन चारों पॉइंट्स को या पांचों पॉइंट्स को। आपको अगर जो 35 मिनट्स का पीरियड है, आप 7 पॉइंट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर डायग्राम्स है तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो पॉइंट्स, हम लोग आंसर भी वैसे ही लिखवाते हैं बच्चों को, ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर देना। फ्रीडम ऑफ एक्शन, फाइनेंस, दीज आर द पॉइंट्स यू नीडेड टू एक्सप्लेन। तो क्या करता है बच्चा, उन सारे पॉइंट्स को याद रखता है। जैसे हम लोग इसमें कॉमर्स के टीचर हैं कोई अभी ऑडियंसेस में, उसमें एक मेथड था ट्रायल बैलेंस मेथड।
ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज सही है कि नहीं। बच्चों को अधिकतर समझ में नहीं आता था कब एसेट्स आ जा रहा है, कब लायबिलिटीज आ जा रही है। तो टीचर ने बताया तुमको सिर्फ एला एंड लीपा थ्योरी याद रखना है। व्हाट इज एला? AELA, एसेट एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट इन डेबिट, एंड लीपा दैट मीन्स लायबिलिटीज। यस, वो सब क्या करेंगे, घर में जाके खुद ब खुद वो चेक करेंगे और कल आपको बताएंगे कि सर यहाँ पर ये वाला ये होगा, सर ये वाला ऐसा होगा, सर मेरे ट्यूशन सर बता। तो आप समझ लीजिए कि आपको कितनी तैयारी कर। मैंने पहले ही बताया दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशन टीचिंग है। सबसे चैलेंजिंग वर्क जो है टीचर का है। इसमें जो 3 पार्ट है ना, एडुकेटर, एडुकेंड एंड एडुकेशन। एडुकेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडुकेटर। एडुकेटर जितना कॉन्फिडेंट, जितना जानेगा वो, जितने अच्छे तरीके से जानेगा। अगर जो हो गया, कोई बोलेगा नहीं सर ये तो ऐसा है, यहाँ पे नहीं है, हमले हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपडेट जो है, जो गूगल करता है, वो भी 100% परफेक्ट नहीं है, वो भी रोज अपडेट करता है डिफरेंट सोर्सेज से। तो मैंने बोला कल तक तो यही था, नहीं सर विराट कोहली का नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ नहीं है, इट इज़ 1036 करोड़। हमने हो सकता है, लेकिन कल तक उसका या परसों तक यही था। आपको यहाँ पर तर्क नहीं करना है, लेकिन वो घर जाके मोबाइल ला के आपको दिखा देगा। हाँ हो सकता है, लेकिन इसका जो पहले वाला स्टेट अपडेटेड था उसमें यही था, ठीक है ना। फिर बहुत सारे बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं सर ये अभी ऐसा नहीं है, अभी इसका मीनिंग चेंज हो गया है, अभी इसका मीनिंग ये आ गया है। नहीं सर क्रिप्टो करेंसी अब बैन नहीं है, अब ये चलता है, इसका माइनिंग बैन किया गया है। तो आप जान के रखिए कि बच्चे उस मार्केट को अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो जानते हैं। हम लोग क्लास में होलसेल रिटेल पढ़ा रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे होलसेलर हैं, कुछ रिटेलर्स हैं। तो हमको क्या करना है, हमको किसी कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना है। इट में भी हम लोग तो यहाँ पर वो मेथड यूज कर रहे हैं ना जो डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू से था। जैसे अभी आज $1 की कीमत है 83 रुपीज़ 40 पैसे। चेक कीजिए मोबाइल पे। कोई बोलेगा नहीं सर ये तो 82 है, 81 है। नहीं नहीं, ये प्रेजेंटली जो है, कल मैंने देखा था तो यही था। आज जब मार्केट खुला तो मैं यहाँ था, मैंने आज का मार्केट नहीं स्टडी किया है, लेकिन कल तक ये वैल्यू थी। नहीं सर अभी देखिए 84 हो गया है। तो मैंने बताया नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो वैल्यूज होते हैं, उसके जो मर्केंटाइज होते हैं, उस पर तय होता है। हो सकता है वो बड़ा हो, कंट्रोवर्सी में हम लोग को नहीं जाना है। और सबसे डिफिकल्ट मेथड जो है ये इम्प्रोम्प्टू मेथड है। ये क्या है, जैसे कोई अगर तैयार नहीं है और उसको हम बुला लें, सर आइए आप बोलिए, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, नहीं 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 आपको बोलना ही है सर। तब हम क्या करेंगे वहां पर, ऑनेस्टली बताइए। हम पहले देखेंगे कि प्रोग्राम किस चीज का है। फर्स्ट है ना, ये प्रोग्राम हो रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ झारखंड सहोदयास का 6 आवर्स इन हाउस ट्रेनिंग है, जिसमें टीचर्स को बताया जा रहा है कि हम लोग क्लास कैसे अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग की डिफिकल्टीज सर ने बताया, कोई नुएंसेस बताएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में कोई बताएगा फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक का इंपॉर्टेंस। इसी को देखकर वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास वोकैबुलरी शॉर्टेज होती है,
वो इतना वेल वर्स नहीं होते, वर्ड के साथ इतनी तरीके से डील नहीं कर पाते, तब क्या करते हैं, उनके लिए बहुत वर्स्ट सिचुएशन होता है। देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक फोबिया होता है माइक के साथ। वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैंने खुद अपने रियल लाइफ में देखे हैं, दे आर एक्सलेंट टीचर्स, लेकिन वो स्टेज और माइक से दूरी बना के रखते हैं, नहीं सर हमको मत बुलाइए प्लीज, जबकि वो डिजर्व करते हैं। स्टूडेंट हैव गॉट 100 इन मैथमेटिक्स, क्रेडिट गोज टू दैट टीचर, लेकिन वो मीडिया नहीं फेस करेंगे। सर इसको हटा दीजिए, कैमरा हटा दीजिए, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। तो कभी कभी ये सिचुएशन भी आता है कि बिना तैयारी के भी हमको स्टेज पे बोलना पड़ता है। इसमें नेगेटिव पॉइंट आपने देखा, इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है? इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि हमको नए नए स्पीकर्स मिल जाते हैं, हमको पता ही नहीं था इतना अच्छा बोलते हैं, आज मौका मिला तो आज पता चल रहा है। जैसे कई के स्कूलों में कई सिंगर्स होते हैं, कुछ सिंगर्स हम लोग को स्कूल के पिकनिक के अंताक्षरी में पता चलते हैं, कह रहे सर आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, तो कभी तो हमको मौका नहीं मिला था। अब क्या है, टीम हार रही है, टीम ने माइक पकड़ा दिया, अब तो गाना ही पड़ेगा। तो ऐसे जब हम लोग नए टॉपिक्स पर नए स्पीकर्स को लेके आते हैं, तो हम लोग को इस मेथड से नई बारीकियां मिलती हैं, नए इनोवेटिव मेथड्स मिल जाते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ही यही है कि कभी कभी हम लोग, हो सकता है ना क्लास में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन करे जो आपने सुना ही नहीं है, कभी कोई ऐसे टॉपिक पे बोले जो आपने देखा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें सॉरी तो नहीं बोल सकते, आपसे रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न रिगार्डिंग दैट, इट शुड बी लाइक दैट। हाँ सर वैसे ही, लेकिन और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये नहीं, भाग नहीं गया मैं, तो ऐसे आपको किसी भी परिस्थिति में अगर बुला दिया जाए, आप जान लो कि किसी भी टाइम में नौबत आ सकती है। आप जहाँ भी जाओगे, आप 26 जनवरी का फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, आप कोने में खड़े हो, लेकिन जान जाएगा टीचर है तो बुला देगा, सर आप 10 लाइन बोलिए। हम तैयार होकर नहीं गए थे, लेकिन हमको बोलना पड़ सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी जब आप जाओगे तो आपको लीडर बना दिया जाएगा, ये बहुत अच्छा बात करते हैं, आप बात कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि टीचर के पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये जब बात करेंगे तो कुछ जांच परख कर ही बात करेंगे, और इनकी बातें लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगी भी। ओके, सो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ सम एक्टिविटी एंड वर्कशीट। एक्टिविटी बहुत इजी है, घबराइए नहीं। एक्टिविटी से पहले बहुत घबराते थे क्योंकि सबको स्टेज पे बुला लेते थे, है ना। एक एक्टिविटी रखा है मैंने फीडबैक के समय, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत ईजियर है। इसमें देखिए आपको 5 डिफरेंसेस स्पॉट करने हैं 13 सेकंड में। इसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा, मैक्सिमाइज कीजिए, इतना ही मैक्सिमम होगा। 13 सेकंड नहीं, हम आपको 1 मिनट देते हैं। अमित सर आप नहीं बोलिएगा, आपको पता है, रेस्ट आर फ्री टू चूज। इसमें देखिए वही नुआंसेस हैं, सटल डिफरेंसेस। नेक, हाँ ठीक, किधर मैम? वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, क्लाउड। और 4th, flowers already have did. Next one, माइक, माइक वहां दीजिए, माइक दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, और एक है, वो तो वो सबसे पहले हुआ, डॉग का निक जो है सबसे पहले। नेक्स्ट वन, प्लांट में, वो इधर वाला। अच्छा ठीक है, और कोई डिफरेंसेस हैं? 5 बोला गया है, 9 डिफरेंसेस है इसमें, 9। दूर से अगर दिखाई नहीं दे रहा तब माइक, माइक प्लीज दीजिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है सर। शैडो ऑफ द फ्लावर, shadow of the, flower plant, that flower plant shadow is in this it is smaller one, and there it is yes yes, little bigger. very good। Yeah. और दो, last 2 remaining।
सर को माइक दीजिए। सर बोलिए प्लीज। हो गया है। और एक पॉइंट है, देखिए। There is a background mountain, sir. देर Background mountain. It can be visible. यस सर, दिस वन। One of the picture. All ओके, completed. क्लैप होना चाहिए सर के लिए, क्योंकि लास्ट डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना थोड़ा कठिन था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम। देखिए इसमें ये थोड़ा बड़ा है, ये सबको दिखेगा। इसमें भी आपको 5 डिफरेंसेस, सबसे पहला नजर इसी पे जाएगा, लेकिन और भी हैं एकदम। हाँ, कैक्टस सबको दिख रहा है मैम, सबसे पहला वही है। ओके, सेकंड वन, थर्ड ढूंढिए। ओके, दैट इज थर्ड वन, बबल्स बड़े हैं। मैम माइक प्लीज होल्ड द माइक। माइक लीजिए मैम। सर माइक दीजिए। इस साइड जो कैक्टस है सर, उसमें 4 है, इसमें 3 है। फिश, हाँ, फिश का नंबरिंग में भी। देन Okay. नीचे सर जो फाइटोप्लैंक्टन्स टाइप का जो प्लांट है, उसका भी नंबरिंग में इस साइड ज़्यादा है, उधर कम है। स्टोन भी सर नीचे जो शायद डिकम्पोजर टाइप के हैं, उधर में भी कुछ उनका स्ट्रक्चर वाला में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, देन स्टोन इधर 3 है, उधर 2 है। वन मोर डिफरेंस इज देयर। हाई है, इधर लो है। हाँ, यस, शैडो में भी थोड़ा डिफरेंस है, इधर का शैडो थोड़ा डिफरेंट है, उधर का शैडो अलग है। ओके। सो बिग हैंड फॉर मैम, बहुत अच्छे। इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ाई के दौरान हम लोग को सटल डिफरेंसेस ढूंढ के रखने हैं। जो जितने ज़्यादा सटल डिफरेंस, हम लोग पहले बचपन में खेलते थे ना, कि 4 से 5 गलतियां ढूंढने वाला औसत बुद्धि, 6 से 7 वाला बुद्धिमान, 8 से 9 ढूंढने वाला उससे भी बड़ा बुद्धिमान, और 10 गलतियां ढूंढने वाला जीनियस। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स की नज़र में हम लोग जीनियस हैं। छोटी भी बारीकी भी वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास होगा कि दोज नुआंसेस what students are able to find out, first of all we have to find out in writing, in literature, in our spoken English, in our presentation, to make our teaching more efficient and effective. Okay, आप जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, मैंने पहले ही बताया, इन सारे वर्ड्स को आप लोग और एक बार देख लीजिएगा। इसमें यूट्यूब वीडियोस भरे पड़े हैं। मॉड्यूलेशन कैसे यूज़ करना है, स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे रखना है, इंटोनेशन कहाँ यूज़ करना है, आर्टिकुलेशन को हम लोग और अच्छा कैसे बना सकते हैं। उच्चारण के लिए कुछ कुछ वीडियोस पतंजलि योगपीठ के द्वारा जारी किया गया था। सुबह सुबह ओम का जो उच्चारण है, ये जो ओम का उच्चारण है, ये आपके शब्दों को बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करता है। आप देखिएगा कुछ कुछ सिंगर्स होते हैं, बहुत धीमे गाते हैं, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। वो गाने ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और ये जो नए गाने हनी सिंह गा रहे हैं, ये 5 साल के बाद किसी को नहीं याद रहेगा। कारण क्या है? उन बारीकियों को उन लोग उन लोग के गानों को गाना बहुत आसान है। आप इसमें म्यूजिक चला दीजिए, कोई भी गा लेंगे। लेकिन एक शास्त्रीय संगीत गाइए तो, एक शास्त्रीय नृत्य कीजिए तो बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ पे वो बारीकियाँ ही ऑब्जर्व की जाती हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो इंडियन आइडल या सिंगिंग कंपटीशन होता है, अभी भी हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं सिंगर तो बहुत अच्छा गा रहा था, इसको प्राइज़ नहीं दिया गया, इसको दिया गया, पार्शियलिटी हो रही है। एक्चुअली वो सिंगर को जब क्लासिकल मोड पे गाने को कहा गया, इसको आप राग भैरवी पे गाइए, वो नहीं गा सके, क्योंकि उतनी सूक्ष्मता का अध्ययन वो नहीं किए थे, है ना। जैसे पंडित जसराज का गीत गाना, भीमसेन जोशी का गीत गाना, कोई ट्राई करता है कभी? आप देखिए स्टेज पे किसी भी टीचर को बुलाइए, कभी नहीं गाएंगे गीत। कैलाश खेर का गीत गाना, वो मैक्सिमम सोनू निगम का गा सकते हैं, कुमार शानू का गा सकते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि बारीकियां इनके गीत में भी है, लेकिन उनके गीतों में बारीकियां भरी पड़ी हैं। इनके शब्दों में जो उतार चढ़ाव है, इन्हीं को कारण इनको ग्रेट सिंगर बताया गया है। शारदा सिन्हा का
डेथ हो गया छठ पूजा के ठीक उसके दरमियान, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कैसेट रिलीज किया, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। कारण है शारदा सिन्हा उन बारीकियों के साथ जुड़ी हुई हैं, उन फेस्टिवल के साथ जुड़ी हुई हैं, वो एक पर्यायवाची शब्द बन गई हैं छठ पूजा का। तो इस कारण से इन बारीकियों को हम जितना अच्छी तरीके से समझेंगे, अध्ययन करेंगे, हम लोग उतनी अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। जितनी अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे स्टूडेंट उतनी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और हमारा शिक्षक प्रोफेशन में आना, पैसे में आना, वो सार्थक हो पाएगा। इन्हीं टाइम हो गया क्या लंच का? उसके बाद तो स्लाइड नहीं है, तो उसमें भी है। हेलो, ओके, चलिए और एक नुआंस ढूंढिए में। इसमें भी है 5 डिफरेंसेस। माइक लीजिए प्लीज मैम। टैप एट फर्स्ट तो टैप के स्ट्रक्चर में सर। ठीक मैम, एक ही बताने हैं, ओके, बाकी नेक्स्ट को दे दें। सॉक्स भी इधर ज्यादा है, उधर कम छोटा लग रहा है। अच्छा, एक कम पैसा दिया होगा दुकानदार को। नेक्स्ट यस, हेयर। और अच्छा, अगर जो ऐसे ही एक फोटो दे दिया जाए और आपको बोले कि इस घटना के बारे में 5 लाइन बताइए, तो बता सकते हैं इजीली? ठीक है, इसमें पहले वाले बच्चे पर बताइए 2 लाइन सिर्फ। हाँ राइट मैम, सर माइक दीजिए प्लीज। हाँ वो तो हो गया, बटक हो गया। अच्छा देखिए, ये है एक कहानी या कविता, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ है। आप अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, ठीक है? 4-5 लाइन खाली आपको बताना है। जो आप लोगों ने डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया, आप बच्चों को क्लास में ये बता रहे हैं कि इसमें क्या दिखाना चाहता है कवि या लेखक जो भी। तो क्या दिमाग में आ रहा है सबसे पहले? मैम आप बोलिए। आई थिंक सबसे पहले दिखाना चाहता है कि पानी हम लोग के जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओके। और पानी के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है म्यूनिसिपैलिटी के लिए। जो कोई भी गांव होता है उसमें, तो वो बच्चा रोक रहा है, रुको मुझे पानी भरने दो पहले, ठीक है? और क्योंकि पानी का समय भी होता है वहाँ पे कि इतने घंटे चलेंगे, तो सबको लगता है कि मेरा बाल्टी भर जाए। ओके, वेरी गुड मैम, मुझे ये लग रहा है। आप सर प्लीज। ये भी बताना चाह रहा है कि आज इतनी सुविधाओं के बावजूद भी पानी की कमी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं है। पानी का प्रचुर भंडार हमारे धरती के नीचे है, फिर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी है और एक समय में ही पानी आता है। हो सकता है कि इन बच्चों के जो माता पिता है वो काम पर गए हैं या कहीं गए हैं, इनको मजबूरी में पानी भी भरना पड़ रहा है, या ज़रूरत है कि उसको भर के रखना पड़ रहा है, फिर इनको स्कूल जाना है, आदि काम करना है। आज पानी की कमी की समस्या को भी ये दर्शा सकता है। वेरी गुड सर, वेल सेड। एनीवन एल्स? और कोई सर? वहाँ लास्ट में सर। यस सर। I would like to highlight through humor stones. I can differentiate between the both of the pictures. This picture shows a winter season, sir. He is not actually eager to bath, but he is waiting, and it shows that he is frightening with the water. मतलब वो नहाना नहीं चाह रहा है। Yes, simply. Or he is eagerly waiting for bathroom, sir, and he could not waiting at that moment. He cannot wait for that.
Well explained, sir. Anyone else? हेलो सर, इस पिक्चर के आधार पर मेरा जो जा रहा है समझ, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दो चीज़ दिखा रहा है। एक तो क्राइसिस दिखा रहा है वाटर का, कि वाटर का क्राइसिस है, और दूसरा ये दिखाना चाहता है हाथ के इशारे से, ऐसा लगता है कि जैसे सिस्टम को बता रहा है कि आप सिस्टम में रहिए, हमको पानी लेने दो, इतना शोर मत मचाओ, हम ले लेंगे, फिर तुम आ जाना। Okay, sir. थैंक यू। Well said, sir. एक क्लैप होना चाहिए सर के लिए। Anyone else? इसमें सब कोई पार्टिसिपेट करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बारीकियों का अध्ययन सबने किया है, ठीक है, और हमें आगे बारीकियां ही अध्ययन करनी है। और भी कुछ हो सकता है? ये जो सिंबल है कि रुको, हमें पानी भरने दो, दूसरा पानी का जो बहाव है, पानी की ज़रूरत है, सर ने बताई द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सो जितनी सारी चीज़ों को बताया गया, इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस नुआंसेस, वी आर गोइंग टू बी ए ग्रेट टीचर। Okay, and the topic was the introduction of a topic and its nuances. So before introducing any new chapter, if you are going through this, all the parts, it is going to be very much effective for all the students. है ना? Student अपने टीचर को इवैल्यूएट कर लेता है, और लॉन्ग रन में टीचर की पहचान भी वही होती है कि 20 साल के बाद भी वो याद रखा है, और वो बोलता है कि सर आपने जो पढ़ाया था हम वो कभी भूले नहीं, अभी तक याद है। यानी आपने उस चैप्टर्स की बारीकियों को उसमें डाल दिया है ना? तो हम लोग कोशिश करेंगे, सब कोई तो नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हम लोग कोशिश करेंगे नुआंसेस का हम लोग ध्यान रखें, वॉइस इन्फ्लेक्शन का ध्यान रखें, टोन का ध्यान रखें, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोग इंटोनेशंस का जरूर ध्यान रखें। आपका वॉइस का फॉल, आपका वॉइस का राइस, है ना? जैसे हम लोगों ने पीके मूवी में देखा था ना, आमिर खान ने अच्छा वर्ड को कितनी बार बताया था? वो तो दूसरे ग्रह का था, सिर्फ अच्छा बोल सकता था, अच्छा अच्छा अच्छा, एवरीथिंग इज रनिंग ओके, अच्छा बेवकूफ़ बना रिया है, ऐसा होता है ना। और एक क्या होता है जो शुरू में समझ में नहीं आता है, ये नानी दादी लोग के साथ होता है, लास्ट में समझती है अच्छा ये बात था। तो देखिए वर्ड सेम है, लेकिन तीनों सिचुएशंस अलग हैं, तीनों एक्सप्रेशंस अलग हैं। हम लोग अगर इन चीज़ों का ध्यान अगर रखेंगे तो आई होप कि आने वाले समय में हम लोग किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को बच्चों के सामने बहुत इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट कर सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू ऑल। ओके सर, नाउ इट्स लंच टाइम आई थिंक। check. So, ताली बजाएंगे जोरदार। Wonderful session by both our resource persons, and I believe you have enjoyed. And how many of you are feeling sleepy while the बैठिए सर, बैठिए। Thank you very much. So, in very short while we'll have the lunch ready. Everything is there. Just I'll confirm in 2-3 minutes. And I believe that you will learn in this. I think more two slides are there, 2 modules are there. By 4 or 5 o'clock, I think we will finish the program. So the lunch is almost ready. So I think you can take a break for lunch break. You can go washroom and then go to the लंच प्लेस स्ट्रेट। यू गो देयर इज अ डाइनिंग हॉल है आपका, जाइएगा सीधा वहाँ पर। खाना आपका बहुत ही गर्मा गर्म रेडी है, स्वादिष्ट भोजन। सो वॉशरूम जाइए, उसके बाद अपना हाथ वाथ धो के बैठ के वहाँ वॉशरूम, वहाँ हाथ धोने के लिए भी है अंदर हॉल में। आप देखिएगा साइड में हैंड वॉश लिखा हुआ है, तो वहाँ आप धो सकते हैं, खाना खा सकते हैं। धूप में भी लेके खाना आके बाहर खा सकते हैं, अंदर में भी टेबल लगा हुआ वहाँ भी खा सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रे फॉर द लंच। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस भोजन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो इस भोजन को नहीं खा सक रहे हैं, और ये तेरी दया है, तेरी अनुग्रह है। इसे तू आशीषित कर, जब हम लोग खाएं बल शक्ति पाए, तुझ में ही इस्तेमाल की जाए। धन्यवाद के साथ इस सेशन को, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम में, आमीन।
So let's go for lunch. Thank you very much. ताली बजाते हुए जाएंगे हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन्स के लिए. Thank you.